Please check now. Now clear ना? चलिए. Okay. Any doubt in previous practice session? Any doubt? चलिए, very good. So let's continue with June 2019. Basically, for now we are solving the C programming question, ना C++ and C programming. एक बार हम इसके here is the first program from the C++, ठीक है. बट थोड़ा सा वापस चलते हैं. चलिए, इसको हम आगे कर ही लेंगे. 2020 हो गया था, 2019 हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना. तो लेट्स सॉल्व 2019. हाँ, एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व इट. Which of the following statement are true regarding C++? Overloading gave the capability to existing operator to operate on the other data type. Inheritance in the object-oriented programming provides the support for reusability. When object is of a derived class is defined, first the constructor of derived class is executed, then the constructor of the base class is executed. And overloading is a type of polymorphism. What should be the answer? क्या आंसर होगा भाई? Statement 1, function overloading give the capability to an existing operator to operate on the other data type. It is true. Inheritance of object oriented provide the concept of reusability. True. Then when object of the derived class is defined, first the constructor of base class is created, then the derived class is created. So this is false. ये आपका false है. And then overloading is a type of polymorphism. Yes, it is true. So option बनेगा, option A, B and D is correct. ठीक है, option C is correct. Okay. चलिए. So next question that we have from the C++ is this one. Consider the following C++ program. ठीक है, consider the following C++ function. Unsigned integer f, unsigned integer n, unsigned integer b is given while n मतलब जब तक आपको कोई वैल्यू मिल रही है, the condition is true. If n value is 0, condition will become false. ठीक है, while n का मतलब ये होता है कि if n is 0, the condition is false. And if n is any non-zero value, ठीक है, non-zero है, it may be a positive number or it may be a negative number, then it will be considered as a true value. So every time we have to add a new value. ठीक है, b को इंक्रीमेंट करना है और n को राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है ना. तो देखिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. सो व्हेनेवर वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने क्या बताया था कि पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई द फंक्शन एफ ए है, रिटर्न द इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द पी. ठीक है, हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट व्हाट इज p इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n. मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है, इट इज समथिंग दैट इज बाइनरी. ठीक है, बाइनरी है एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू द डेसिमल इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर n. ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पर n को अज्यूम कर लेते हैं, n का वैल्यू है 5. n का वैल्यू क्या है 5.
Now b will be initially 0, you can see here. Now while n, condition क्या होगा, while 5, ठीक है, while 5 we will say it is non zero value, so ये true है. If this condition is true, तो आपको क्या करना है, b इक्वल टू b प्लस n का एंड ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, सो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी. ओके, सो n में लिख दे रही हूँ 5 का n परफॉर्म करना है विद 1. ओके, सो नाउ व्हाट इज b, करंट वैल्यू ऑफ b इज 0, b की करंट वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस 5 को बाइनरी में लिख लो 101 एंड 1 को बाइनरी में लिख लो 001 and operation will give you 1 plus 1 and 1 is 1, 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 0. So आपको क्या मिलेगा, what will be the new value of b, value of b will be 0 plus 1 और it will be equal to 1. ठीक है, डन है यहाँ तक. ये आपको b का वैल्यू क्या मिला, 1. now we have to perform n right shift, 2 bit position shift कर देना है ना, 2 बिट पोजीशन आपको राइट शिफ्ट कर देना है. सो 101 को जब राइट शिफ्ट करेंगे, सो वी विल गेट 10, है ना, ये बिट आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी. सो वी विल हैव 10 मीन्स 2. सो अगेन वाइल 2, ठीक है, वाइल 2 कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी. वाइल 2 कंडीशन इज ट्रू. नाउ b इक्वल टू b प्लस 2 and 1 आपको परफॉर्म करना है. b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, ये आपको मिली है, ठीक है. b प्लस 1, 2 क्या हो जाएगा 10 एंड विद 01 इट विल गिव यू 1, 1 and 0 is 0, 1 and 0 is 0, है ना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इट विल गिव यू b इक्वल टू b इक्वल टू जी b इक्वल टू, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 प्लस b इक्वल टू 1 प्लस 0 और b इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या बना आपको 1. डन है, कर रहे हैं ना आप साथ में. चलिए, नाउ द लास्ट इटरेशन, अगेन वी विल परफॉर्म द राइट शिफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन, सो इट विल गिव मी 1, इट विल गिव मी 1 अगेन, ठीक है. वाइल 1 कंडीशन है ट्रू, वाइल 1 कंडीशन है ट्रू, तो क्या करना है, b को इंक्रीमेंट करना है with current value of b, add करना है 1 का एंड ऑपरेशन with 1, obviously it will give you 1, so 1 plus 1 is 2, so b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. डन. अगेन राइट शिफ्ट परफॉर्म करो, 1 का राइट शिफ्ट विद 1 बिट, सो ऑब्वियसली हेयर यू विल हैव 0, ठीक है, जो आप हमेशा फ्रंट में एक नया बिट इंसर्ट करते हो, सो इट विल गिव यू 0. तो while 0 लूप इज टर्मिनेटेड, लूप क्या हो गया, टर्मिनेट. अब रिटर्न क्या करते हैं हम, b, रिटर्न क्या होगा b, दैट इज 2. सो बताइए मुझे n के रिस्पेक्ट में, n क्या था, आप आंसर आप बताएंगे, ठीक है. n के रिस्पेक्ट में n था 5 और इट वाज 101 एंड जो p का वैल्यू मिला वो मुझे मिला 2. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, क्या रिजल्ट करेक्ट है, इज इट द नंबर ऑफ जीरोस, क्या ये नंबर ऑफ जीरोस है, क्या ये नंबर ऑफ जीरोस है. नीतू मैम, जया मैम, सोनिया मैम, क्या ये नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है. सो इट इज व्हाट, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरो. नो, नंबर ऑफ जीरो इस एग्जांपल में कितने लिए आपने, ओनली 1, वो वैल्यू क्या मिली 2, सो इट इज फॉल्स. नंबर ऑफ बिट्स आर 3, नंबर ऑफ बिट्स आर 3, हियर रिजल्ट इज 2, सो इट इज आल्सो फॉल. नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 1, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 1 इज 0, सो इट शुड बी 0, बट हमको रिजल्ट मिला है 2. सो नंबर ऑफ 1 इन द, well, in the binary representation, yes, number of 1 is 2, answer is d, ठीक है, आंसर विल बी डी. मैम क्या रिपीट करना है, कंप्लीट न्यूमेरिकल.
चलिए अब आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है, अब मेरे साथ सॉल्व करिएगा। क्लियर ऑल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स नाउ सॉल्व इट टुगेदर। ओके, नाउ टेक एनी वैल्यू ऑफ एन, कोई भी एन की एक वैल्यू ले लीजिए, कि कोई भी एक एन की वैल्यू ले लीजिए। सो दिस टाइम लेट्स टेक एन इक्वल टू 6, ठीक है, एन इक्वल टू 6 ले लें, एन इक्वल टू 6, या एन इक्वल टू 8 ले सकते हो आप, ठीक है, 8 ले लीजिए। सो नाउ दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, n का वैल्यू हो गया 8, n वैल्यू इज 8। नाउ b को इनिशियलाइज करिए 0 से, देन वाइल n, यू नो कि एट n की वैल्यू क्या है, वाइल n 8, n इज 8, ठीक है। सो एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू, b इक्वल टू b में ऐड करना है n क्या है आपका 8 का एंड ऑपरेशन विद 1, इट इज सिंगल एंड, मतलब दिस इज बाइनरी एंड, बाइनरी एंड परफॉर्म हो रहा है। सो वी हैव, ठीक है, वी हैव टू परफॉर्म एंड विद 8 and 1, 8 और 1 का एंड परफॉर्म करना है। सो वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। सो व्हाट आई एम राइटिंग 0 प्लस 8 का बाइनरी क्या होगा 1 0 0, एंड 1 का बाइनरी क्या होगा 0 0 0 1, एंड एंड ऑपरेशन वी विल परफॉर्म। सो व्हेन वी विल परफॉर्म द एंड ऑपरेशन, ठीक है, जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सो इट विल गिव यू 0 and 1 is 0, 0 and 0 is 0, ठीक है, is 0, then 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 0. So what will be the value of b, b will become, ठीक है, 0 plus 0 will be 0, it will remain 0, ठीक है, it will remain 0, done। चलिए next we have after this statement we have to perform the right shift operation। So 1000 is my binary number, I have to perform right shift by 1 bit, so I will divide the 8 by 2, मैंने रखा है आपको, so it will give you 4, your simply shift कर दीजिए, so you will get 0100, that is equivalent to the 4। अगेन while condition, while 4 क्या कहेंगे, this is true, if this condition is true, again the loop body will work, inside the loop body, ठीक है, inside the loop body you have value b, b will be b plus, ये क्या है ना, कंपाउंड अरिथमेटिक, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो नाउ वी हैव बी का करंट वैल्यू है 0, ठीक है, बी या बी ही लिख लीजिए, बी प्लस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 एंड 1 परफॉर्म करेंगे। सो नाउ दिस टाइम 0 प्लस, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए 0 0 0, 1 क्या बनेगा 0 0 0 1, and perform the AND operation. So you will get 0 0 0 again. So B will become 0 plus 0 or equal to 0. ठीक है, it will remain 0. Now the next time, ठीक है, again we will perform the right shift. So 0 1 0 is the current number, will perform the right shift, we will perform 4 divided by 2 should be equal to 2. So here we will get 0 0 1 0, 0 0 1 0. So again the while loop while 2 कंडीशन इज ट्रू, क्या करना है, b को इंक्रीमेंट करना है, b प्लस एंड 2 एंड 1 आप परफॉर्म करोगे, b का वैल्यू है 0, 2 कितना हो जाएगा 0 0 1 0, 1 कितना होगा 0 0 1, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए, इट विल गिव यू 0। सो अगेन b विल रिमेन 0 प्लस 0 और 0, 0 plus 0, yes, again b will be 0। now the next time again we will perform the right shift, so now it will become, ठीक है, 0 0 0 1, है ना, क्योंकि 2 को डिवाइड कर दोगे 2 से, that will give you 1, so 0 0 1, again while while 1 कंडीशन ट्रू है, so b इक्वल टू b में ऐड करिए
1 का एंड ऑपरेशन विद 1, ठीक है, या B है 0, 1 का बाइनरी कितना लिख रहे हैं हम, 0 0 0 1, 0 0 0 0 1, एंड ऑपरेशन आपको देगा 1, ठीक है, एंड ऑपरेशन आपको क्या दे देगा, सॉरी, एंड ऑपरेशन विल गिव यू 0 0 1, ठीक है, सो B विल बिकम 1 नाउ, B क्या हो गया 1, ओके, नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल परफॉर्म द राइट शिफ्ट, 0 0 1, right shift 1, so it will become 0 0 0 0. When you will apply the while loop, while 0 condition is false, while will terminate. तो जैसे ही while terminate होता है, ठीक है, सॉरी, जैसे ही while terminate होता है तो आपको क्या करना है, you have to return the value of B, you have to return the value of B. So finally value of B क्या है, 1 है. So does it equal to 0? Now number of 0 in binary representation of an, देखिए the function I have written the integer represent in the binary representation, ठीक है, यदि n का 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो ये क्या था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1 0 0 0 1 0 0 0. So number of 0 here 3, but my result is 1, so it is not suitable answer. Number of bits, here we have 1 2 3 4, but the result is only 1, so it is again eliminated. Number of consecutive 1, it should be 0, कोई भी consecutive 0 नहीं है, तो b का वैल्यू हमको 0 मिलना था, but this is also incorrect. Number of 1, yes, here only one bit is 1, only one bit is 1, so answer क्या मिला है, this program is counting the number of 1, ठीक है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इट इज काउंटिंग नंबर ऑफ वंस इन द डेटा, ठीक है, अभी क्लियर है. मैम वो P उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, वो मिसप्रिंट आप बोल सकते हो, ब्लैंक स्पेस नहीं है, उसको ब्लैंक स्पेस को इन्होंने फिल किया है P से, तो उस P की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, फंक्शन रिटर्न द इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द P, दैट रिप्रेजेंट द P, तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, B, तो B को आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, P में. व्हाट इज P? P in the binary representation of positive number of n. So what is P? We have to specify. ये जावा है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो हियर वी हैव सी कोड सेगमेंट, हियर वी हैव सी कोड सेगमेंट. पॉइंटर्स हमने पढ़ा है ना सभी ने, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो हियर वी हैव, सॉरी यूनियन है, यूनियन पहले स्ट्रक्चर है. इनसाइड द स्ट्रक्चर देखिए क्या कर रहे हैं, इनसाइड द स्ट्रक्चर वी हैव वन यूनियन एज वेल, and then that union is containing, ठीक है, that union is containing a character A and short b, है ना. तो मैक्सिमम मेमोरी कितनी allocate होगी, it depends on the largest data type. So approximately 2 byte आप assume कर सकते हो कि short b का size क्या होता है, 2 byte. And then there is a object of union that is capital U, मैंने already लिखा हुआ है. Now we have unsigned character. This unsigned character C, it is the member of structure. So here you have character. Let's assume the size of character is 1 byte. So यहाँ आपका C के लिए 1 byte allocate हो रहा है. So the total size of structure कितनी होगी, ठीक है, 2 byte A, 1 byte A, so it will be 3 byte. 3 बाइट का आपका एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ S, ठीक है, 3 बाइट का एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ S. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन अरे ऑफ टाइप S. अब S क्या है, S इज अ स्ट्रक्चर, S इज अ स्ट्रक्चर एंड वी आर क्रिएटिंग द अरे ऑफ. तो B0 मैंने आपको सिखाया है क्लास में, ठीक है, कि B0 क्या होगा, B0 विल बी ऑफ 3 बाइट, जहां आपका यूनियन भी होगा और कैरेक्टर भी होगा, तो ये 3 बाइट आपका अलोकेट हो गया. देन B1, दिस विल बी B1. सो सपोज स्टार्टिंग एड्रेस यदि 101 है ना, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस क्या बनेगा, 1003. B1 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, 1003.
नेक्स्ट एड्रेस विल बी 1006, 3 से इंक्रीमेंट होगा B2 का, देन वी हैव B3, है ना, B3 एंड सो ऑन, सो इट विल बी 1009 लिख लेते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो पॉइंटर है, ठीक है, सी वी हैव अ पॉइंटर P ऑफ टाइप S एंड इट विल कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ B4, ठीक है, एड्रेस ऑफ B4, ये हम ले लेते हैं B4, एड्रेस ऑफ B4 एंड एड्रेस ऑफ B5। वैसे आपको लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके अपने क्लियर हैं। 1015, सो दिस विल बी B4, है ना, और दिस विल बी B5। सो इफ आई विल कैलकुलेट, ठीक है, ये तो पहला पहला क्या हुआ इन्होंने, एंड P के थ्रू आप एक्सेस क्या कर रहे हो, देखो P के थ्रू आप एक्सेस क्या कर रहे हो, एरो ऑपरेटर लगाया है, यूनियन का ऑब्जेक्ट है और उसमें जो वैल्यू B है, ठीक है, मतलब P में जो U है और B है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ B4, ठीक है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ B4। B4 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके अंदर जो U है, ये आपको पता है, U में B की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इन द हेक्साडेसिमल, ठीक है, इन द हेक्साडेसिमल 0x1234। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हमने अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है, अभी हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है। सो नाउ देखिए, पहली चीज इन्होंने क्या बोला, इफ m इज द वैल्यू ऑफ, इफ m इज द वैल्यू ऑफ q माइनस p, q क्या है, B5 का एड्रेस है, एंड B4, ठीक है, B4 P have the address of B4, Q have the address of B5. So what is the difference between Q and P? Q and P का difference क्या होगा? What will be the difference between Q and P? So we have to perform pointer arithmetic. We have to perform the pointer arithmetic. 105 is the address in Q and 1012 is the address in P. But we know that if we will write 3 here, 3 is the size of one data, ठीक है, वन डेटा सेक्शन, जो आपका एक यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसका साइज ही 3 बाइट है ना, तो हम ये डेटा टाइप का साइज है ना, स्ट्रक्चर का साइज बन रहा है 3 बाइट, तो हम सिंपल शब्दों में बोले, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3 एंड इट विल बी 1। अरिथमेटिक याद है, ठीक है, जैसे मैं करती थी, यदि मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, जैसे लाइक इफ वी हैव अ पॉइंटर वेरिएबल सपोज PTR, एंड PTR में करंट वैल्यू में आपको क्या सिखाती थी कि यदि 1003 है, एंड इफ यू विल परफॉर्म द PTR प्लस प्लस, if you will perform the PTR plus plus and the size of जो ऑब्जेक्ट जो स्टोर कर रहा है, PTR साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्टोर कर रहा है, सपोज कर लेते हैं वो कितना है, वो उसका साइज है 3 बाइट, 3 बाइट, तो PTR प्लस प्लस की नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, PTR प्लस प्लस मतलब हम PTR की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम इंक्रीमेंट किससे करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं डेटा टाइप की साइज से, ठीक है, हम इंक्रीमेंट करते हैं डेटा टाइप की साइज से, है ना, याद आया, current value is 1003, so what will be the next value of PTR plus 1, PTR plus 1 will give you 1003 plus 3, that is 1006, है ना। अब यदि मैं इनसे बोलूं कि what is the difference between this, यदि मैं PTR माइनस माइनस करूं, तो मैं बेसिकली करना क्या चाह रही हूँ, PTR माइनस 1, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, वो 1 डेटा साइज का होगा, वो 1 डेटा साइज का होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 डेटा साइज। गॉट इट, समझ में आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, एक दूसरे को कर रहे हैं ना, एक ही सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस है ना, एक ही सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस है ना, मैंने बताइए, क्लियर है, हाँ 3 करोगे बट 1003 हो जाएगा, बट
यदि मैं लोकेशन बोलूं, सो दिस इज द वन पोर्शन, दिस इज द सेकंड पोर्शन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वन बाय वन, वन का, क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे ही +1 करोगे पॉइंटर में, यू विल गेट द नेक्स्ट लोकेशन, जैसे ही आप +1 करोगे यू विल गेट द नेक्स्ट लोकेशन, +1 पर आपको नेक्स्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो यदि मैं -1 करूंगी तो प्रीवियस लोकेशन मिलेगा। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं कि यदि हम q माइनस पी करेंगे, यदि हम q माइनस पी करते हैं तो डिफरेंस कितना होगा, इट विल बी 1, इट विल बी 1। Is it clear? Don't get confused. It will not be 3, it will not be 4. ये 3 होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 1 होगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। कंजिक्यूटिव लोकेशन का जो डिफरेंस होता है, अड़ोसी पड़ोसी का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, लेकिन इसका आइटम B5 और B2 का डिफरेंस, या B4 एंड B2 का डिफरेंस 2 है, B3 B1 का डिफरेंस 2 है, B3 B0 का डिफरेंस 3 है। चलिए, थैंक यू, फाइनली आप लोगों ने बोला। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब देखो, द वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करना है, ये तो आप पर, ठीक है, फिर जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज द वैल्यू ऑफ, देखो पहले तो इंटीजर और p, ये क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, ठीक है। p क्या है, एक पॉइंटर है और इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, माइनस p में जो c पैरा वैल्यू है, p के c में जो वैल्यूज है उसको रीड करके उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, ठीक है, उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है। c इज व्हाट, कैरेक्टर, सो कैरेक्टर को अल्टीमेटली इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं। p का डेटा टाइप ले रहे हैं, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, और p में जो वैल्यू है c, ठीक है, p के अंदर जो c वैल्यू है उसका डेटा टाइप लेकर और उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इनटू द इंटीजर, और फिर उसका डिफरेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाउ सी, इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इंटीजर एट द रेट pc, so minus integer p, so in the first case c is a character and it is typecasted to the integer p to p में से एरो साइन किसके लिए यूज होता है, एरो साइन यूज होता है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू जब आप किसी मेंबर को एक्सेस करते हो। नाउ c is a character member, c is a character member and you are typecasting it into the integer, okay, it into the integer। और यदि मैं इंटीजर p की बात करूं, ठीक है, p इज ऑलरेडी अ पॉइंटर, एक पॉइंटर है, कैरेक्टर को आप टाइप कास्ट कर रहे हो इनटू द इंटीजर, एंड इंटीजर p इज अ शॉर्ट इंटीजर टाइप, शॉर्ट इंटीजर टाइप, ठीक है। तो अब हमको इनका दोनों का डिफरेंस देना है यहाँ पर, ओके। सो जो जो साइज ऑफ इंटीजर होगा वो 4 बाइट होगा, एंड जो इंटीजर ऑफ शॉर्ट बाइट होगा दैट इज कंसीडर एज 2 बाइट्स, ठीक है। सो जो डिफरेंस है वो बनता है 4 माइनस 2 दैट इज 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका पॉइंटर स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, ठीक है, पॉइंटर और स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, ओके। चलिए, आई होप समझ में आया। Let's solve this question. नहीं, it was I think marks to all था, ये marks to all था। हाँ, ये इसको सॉल्व किया था हमने, ठीक है। ये तो आपका मार्क्स टू ऑल, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नाउ वी हैव 2018, ये जावा का फंक्शन है, ठीक है, जावा है ये। चलो इसको सॉल्व करिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्यूडो कोड फ्रैगमेंट वेयर m इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, m is a non-negative integer that has been initialized p equal to 0, ठीक है, k equal to 0।
नाउ वाइल k इज लेस देन m, ठीक है, वाइल k इज लेस देन m, p को इंक्रीमेंट करना है 2 पावर k से एंड k को इंक्रीमेंट करना है 1 से एंड एंड वाइल। अब इसमें क्या दिया है कि which of the following is a loop variant for the while statement, ठीक है। तो यहाँ एक नया डेफिनेशन आता है लूप वेरिएंट का, ठीक है। वी हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लूप वेरिएंट। सो व्हाट इज लूप वेरिएंट? लूप वेरिएंट फॉर अ while statement is an assertion, assertion means it is a condition, ठीक है, assertion means it is a condition that is true each time, each time the guard is evaluated during the execution of while statement, ठीक है। तो मतलब the condition that will remain same, this is what, इसको आप बोलते हो invariant, ठीक है। the condition that or assertion that is true each time the guard is evaluated during the execution of the while statement। तो अब हमको चाहिए कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ p क्या होगा या जीरो का k का रेंज क्या होगा, ठीक है, k का रेंज क्या होगा। ओके, लाइक यू कैन सी हेयर, ये आपको इसमें से आंसर करना है। पहले तो क्वेश्चन क्लियर है, एक बार और रीड कर लीजिए। वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन, ठीक है, कि व्हाट p किसके इक्विवेलेंट है, p किसके इक्विवेलेंट है एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ k। ओके, तो नीतू मैम क्या बोल रहे हैं, फॉर m इक्वल टू 2 द लूप विल रन 2 टाइम्स एंड फॉर एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ p is 3 एंड k is 2। यस, ठीक है, वैल्यू ऑफ p is 3 एंड वैल्यू ऑफ k is only 2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, अभी देखिए वीडियो क्लियर है। सो अगेन, वेरी गुड नीतू मैम। सो नाउ सी द वैल्यू ऑफ p इज इनिशियलाइज करना है आपको 0 से एंड k को इनिशियलाइज करना है 0 से। नाउ जो लूप है इट इज स्टार्टिंग, देयर इज सम वैल्यू ऑफ m, आई डोंट नो व्हाट इज m, बट जो k होगा k विल बी लेस देन अप टू m, ठीक है। सो वी हैव टू इन द वन कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ k, ठीक है। k की रेंज क्या बनेगी, k की रेंज क्या बनेगी, ये भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। और सेकंड, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज p, ठीक है, p क्या होगा। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 यदि आप पुट कर रहे हो। सो सपोज m को मैं अज्यूम कर लेती हूँ, m इज 2, ठीक है, m को अज्यूम कर लेते हैं m 2 है, ठीक है। सो इफ k is 0, what will be the value of p, p will be current value is 0 and 2 power k मतलब 2 power 0 और p will become 0 plus 2 power 0 या 2 power 0 ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। it should be 2 power 0, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 power 0। now the next time, अब क्या होगा, we will increment the value of k, so k will become 1, k will become 1, okay। so again I will go to the loop,
वापस जाती हूँ, कंडीशन चेक करूँ क्या 1 इज लेस देन m है, 1 इज लेस देन 2 है, अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन 1 इज लेस देन 2 है। ठीक है, तो अब देखिए p क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, p विल बी करंट वैल्यू ऑफ p, करंट वैल्यू ऑफ p आपको मिला है 2.0 प्लस 2 पावर 1, ठीक है 2 पावर 1, ओके। चलिए, सो ये आपका हो गया 2 पावर 1 एंड देन व्हाट इज k, k विल बिकम, ठीक है k विल बिकम k प्लस 1, k प्लस 1, ठीक है, तो k प्लस 1 मतलब k का वैल्यू हो गया 2। सो नाउ इन द थर्ड कंडीशन k आपका क्या है 2 है, k आपका क्या है 2 है। सो इन द थर्ड कंडीशन 2 इज लेस देन 2, कंडीशन होगा फॉल्स, कंडीशन होगा फॉल्स, वी विल स्टॉप हियर, हम यही स्टॉप कर देते हैं, हमको बहुत ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। सो नाउ सी वेरीफाई द आंसर, वैल्यू ऑफ k इट इज इक्वल टू m, तो मतलब k का जो लूप स्टार्ट हम कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो, ठीक है, वी आर बिकॉज k is initialized with 0, so we will start from 0 and up to the value of m. So in the first case k should be greater than equal to 0 and k should be less than m, less than m means हमारा जो k का वैल्यू होना था वो 1 तक होना था, so it is false, this one is false. The second condition k should be less than m, again false because m का वैल्यू भी 2 है और k का वैल्यू भी 2 है, so k should start with 0 and it should end with m, ठीक है। तो एक कंडीशन ये मिल रही है 0 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू m एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू m, बोथ आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। k का तो हमको केस मिल गया, अब हमको देखना है कि वेदर, ठीक है, what is the value of, what is the value of p is satisfied here। तो यदि मैंने p इक्वल टू 0 लिखा था, सॉरी p इक्वल टू 0 था एंड k का वैल्यू 0 था, तो मुझे p का वैल्यू क्या मिला था 2.0, 2.0 2 पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं, यदि मैं वैल्यू पुट करूं क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, so 2 power k is 0 minus 1 it will give you minus 1 minus 1, 2 power 0 is 1 होता है ना, हाँ 2 power 0 it will give you 0। in the second condition 2 power 0 plus 1 minus 1, so it will give you, फिर से लिख लीजिए 2 प्लस पावर 1 माइनस 1, यहाँ भी वैल्यू पुट करके देख रहे हैं हम, so we have 2 power 1 minus 1 it will be 1। so now what should be the answer, है ना, आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए था 2 पावर n माइनस 1, n नहीं 2 पावर k की वैल्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, टू पावर 0 इज 1 होता है ना, 2 पावर 0 इज 1 और ठीक है, ऑप्शन सी, सी तो मैच नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, इफ k इक्वल टू 1, ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ओके, अच्छा ये वाला केस देखेंगे आप, सॉरी, ठीक है, ये तो आपने स्टार्ट किया था, नाउ हियर वी आर चेकिंग द कंडीशन फॉर दिस करंट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ k, सो k का करंट वैल्यू कितना है, ठीक है 1 है, नाउ पुट द वैल्यू, सो p इक्वल टू 2 पावर k, है ना 2 पावर k minus 1, so it will be 2 power 1 minus 1 that will give you 1, ठीक है, that will give you 1, और यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो भी 1 है, ठीक है, k का वैल्यू भी 1 है, सो दिस इज द केस, आपका ऑप्शन सी सेटिस्फाइड होगा। यदि सेकंड केस के लिए आप चेक करना चाहो तो इसके लिए भी चेक कर सकते हो, इफ द वैल्यू ऑफ k इज 2 पावर 2 माइनस 1, ठीक है 2 पावर 2 माइनस 1, सो व्हाट इज द वैल्यू, आपको क्या वैल्यू मिलेगा p का,
ये हो जाएगा 1 + 2 power 1 दैट इज 3। और यदि आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो सो यू आर गेटिंग द 3, है ना। दोनों केस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि आप यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करो यू आर गेटिंग 3, है ना। फॉर दिस इट विल चेंज। ओके, हाँ हाँ करेक्ट मैम, करेक्ट करेक्ट। सो क्लियर है भाई, अकॉर्डिंग टू के वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। सो चलिए, दिस इज द आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, now we have this question. Now we have this question. Consider the following C++ program P1 and P2 and the two statement S1 and S2 about the program. Now we have void f, integer a, integer pointer is here, and here is the reference variable. Okay, here we have the reference variable. So let's start from the man program से start करिए आप। तो इन द मैन फंक्शन वी हैव सम वेरिएबल आई को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस एज वेल, तो हम इसका एड्रेस ले लेते हैं 2000, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, वी आर पास, दिस इज कॉल बाय वैल्यू, तो आई का वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगा, ए में कॉपी होगा वैल्यू क्या, 0, ठीक है। ए में वैल्यू कॉपी हो जाएगी 0। नाउ व्हाट अबाउट बी, इन बी वी विल पास द एड्रेस ऑफ आई, है ना। तो बी में एड्रेस किसका होगा, आई का, दैट इज 2000। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सी, सो इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। सी प्लस प्लस में @c यदि आप लिख रहे हो, सो इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, इट विल सिंपली स्टार्टिंग, इसको हम अलाइजिंग भी बोलते हैं, नेम अलाइजिंग। सो सी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, इधर आई कैन यूज द नेम आई और आई कैन यूज द नेम सी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, कि जो फर्स्ट पैरामीटर है इट इज सिंपली आई, सो इट विल कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू कॉपी हो जाएगी वेरिएबल ए में, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होती है। इन द पॉइंटर वेरिएबल इट विल टेक द एड्रेस, सो आई एम पासिंग द एड्रेस ऑफ आई एम पासिंग द एड्रेस ऑफ आई बिकॉज बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल। तो जब आपने एड्रेस पास किया, ठीक है, जब आपने एड्रेस पास किया तो यहाँ क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई इज 2000 एंड देन वी आर सेइंग आई, बट यहाँ जो वेरिएबल है वो रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो रेफरेंस वेरिएबल है। सो नाउ इट इज टेकिंग, ठीक है, द रेफरेंस टू द सेम लोकेशन, सो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, दैट्स इट। इतना क्लियर है ना। अब आप क्या कर रहे हो, a इक्वल टू 1, ए विल बी अ लोकल वेरिएबल फॉर द फंक्शन एफ, ए एक लोकल वेरिएबल है, तो यदि आप 0 की जगह 1 असाइन कर रहे हो, ए यहीं पर अपडेट होगा, ए की वैल्यू कहाँ चेंज होगी, इस लोकेशन में। एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होते। देन आई एम राइटिंग डी रिफरेंसिंग ऑफ बी, मतलब बी में जो एड्रेस है, बी में जो एड्रेस है वहां 2 स्टोर कर दो, ऐसे लिखते हैं ना, वैल्यू एट 2000 असाइन टू, असाइन टू, सो एट दिस लोकेशन, ठीक है, एट दिस लोकेशन आई एम असाइनिंग द वैल्यू 2, 2 असाइन कर दिया आपने। नाउ c इज इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3। अब c का भी एड्रेस क्या है, वही है जो i का एड्रेस था, c का एड्रेस क्या है, वही है जो i का एड्रेस था। सो व्हेन आई एम असाइनिंग वैल्यू 3 इट विल अपडेटेड विद 3, ठीक है। ये जो लोकेशन है, पहले इसमें 0 था, फिर 2 हुआ और फाइनली जो वैल्यू बनी दैट इज 3। इज इट क्लियर, कैसे कैसे वर्किंग हो रही है, इज इट क्लियर। है ना, हाँ। सो नाउ द आउटपुट ऑफ, या P1 विल प्रिंट, जब आप सी आउट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, जब आप सी आउट परफॉर्म करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी 3, आई विल बी 3। सो आंसर है S1, S1 will print 3, it is correct. Now we have the P2 program.
P1 का तो कहानी हमने समझ ली. P2 प्रोग्राम. In P2 program we have two global variable double. A is equal to 1. A को आपने initialize किया है 1. It is a global variable somewhere in the memory location, and we have another variable B somewhere in the memory location with the value of 2. Now double is the return type, and return type क्या है? रिटर्न टाइप जो है इट इज द रेफरेंस. देखो एट द रेट लगा हुआ है. इट इज द दिस फंक्शन विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ समथिंग. ठीक है, किसी चीज का ये एड्रेस रिटर्न करेगा. चलिए देखते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन द मैन फंक्शन वी हैव एफ ए. एफ ए क्या है? ये फंक्शन है. एफ ए एक फंक्शन है ना. तो अब देखो, जैसे ही आपने एफ ए लिखा, जैसे ही आपने एफ ए लिखा, immediately the controller will jump to the function. ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं होगा. it will not have any assignment, it will jump to the function. ये कहाँ कर जाएगा? ये जंप कर जाएगा to the function. ठीक है, इस फंक्शन के अंदर. और फंक्शन में, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फंक्शन में ए आपने पास किया, फंक्शन में आपने पास किया ए. तो यहाँ लिखा हुआ है एट द रेट डी, मतलब डी विल बी अ वेरिएबल दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द ए, जस्ट लाइक द रेफरेंस. जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पर भी डी एक वेरिएबल बनेगा दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द वेरिएबल ए, है ना. वेरिएबल ए का रेफरेंस पास हो रहा है. अभी इस सेक्शन का कैलकुलेशन नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि जैसे ही फंक्शन का नाम इसने रीड किया, इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया. Now value of d we are updating, making it 4. ठीक है, value of d we are updating and making it 4. So a will become 4 now, क्योंकि d और a एक ही है. So a will become 4 now. Okay, now return क्या कर रहे हैं? b. लेकिन जैसे ही मैं b लिखूंगी, यहाँ रिटर्न क्या है? एड्रेस ऑफ b. एड्रेस, रेफरेंस ऑफ b को रिटर्न करेंगे. तो मतलब ये राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक एड्रेस होगा. ठीक है, हमारे पास एक एड्रेस होगा जो कि बी का एड्रेस है, और उस एड्रेस में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5. ठीक है, पहले तो यहाँ एड्रेस ऑफ बी, सो एड्रेस ऑफ बी है 4000. 4000 को अपडेट कर दीजिए 5 से. तो जब आप सी आउट ए करोगे, इट विल प्रिंट 4, बट जब आप बी करोगे, now it will print 5. Now it will print 5. So answer will be 4 and 2, it is false. ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? Only S1 is true, S2 is false. Only S1 is true, S2 is false. ठीक है, चलिए, यहां से थोड़ा प्रोग्रामिंग लेंदी हो जाती है. ठीक है, तो आंसर आपको मिलेगा 4 and 5. Only S1 is correct. Only S1 is correct. This is from HTML. चलो एक प्रोग्राम और करते हैं. 2018 में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम आए थे, उसके आगे और पीछे इतने डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, 2018 में था डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग. सो हियर वी हैव C++ फंक्शन void f character w is given, इंटीजर x से आपका वर्किंग करते हैं. अच्छा ठीक है, अब हमको क्या बोला गया? वी हैव ऑप्शन देख लीजिए. It output the content of the array in the reverse order. It output the content of array in the original order. It output the content of array with the character shifted over by one position, and the output of the content array with the character rearranged so that they are no longer recognized as a word in the original phrase. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया. अब देखिए हम क्या करें, एफ को कॉल कर लेते हैं. Here we have to pass the character string. कैरेक्टर स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ हेलो. हेलो, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग कैसे बोल रही हूँ? क्योंकि यू कैन सी हियर वी हैव अरे, कैरेक्टर अरे है, कैरेक्टर अरे है.
सो वी आर पासिंग हेलो हेयर, ठीक है, वी आर पासिंग हेलो। C++ का प्रोग्राम है, सो ऑब्वियसली वन टर्मिनेटिंग कैरेक्टर विल बी देयर। वन टर्मिनेटिंग कैरेक्टर विल बी देयर, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ w, strlen function. So strlen function will give the actual length of the string, it will ignore the null character. So strlen से x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5। strlen से x का वैल्यू क्या मिला, 5। नाउ वी हैव कैरेक्टर सी, फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हो i इक्वल टू 0 से, i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन 5, i शुड बी लेस देन 5, कंडीशन है ट्रू, लूप के अंदर चलते हैं। c में आपको असाइन करना है wi, wi मतलब 0, तो c क्या बन जाएगा, h, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 इग्नोर्ड है, तो w 0 में क्या है, h, तो c का वैल्यू क्या हुआ, h। w आई मतलब w 0 में असाइन करिए w x का वैल्यू क्या है भाई, 5 है, माइनस आई क्या है, 0 माइनस 1 को, सो इट इज w4, या w4 क्या हो जाएगा आपका, w4 इज o। तो देखो नया क्या हुआ, जब आपने काम किया, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ उसको, तो जब आपने ये वाला काम किया, जब एक पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, है ना, x इक्वल टू 0, तो o इधर आ चुका है, h इधर जा चुका है, ऐसा बोल सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी नहीं, अभी अभी आपका o कहाँ आ गया है, o आ गया है एट 0th लोकेशन, एट 0th लोकेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, w x माइनस आई माइनस 1, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, मतलब w4 पर आपको c में जो डेटा है दैट इज h, इसको स्टोर कर देना, इसको स्टोर कर दो यहाँ, इंटरचेंज हो गया। नहीं अभी नहीं करवाए मोनू मैम, एक्चुअली उनको मैंने रखा हुआ है फॉर द लास्ट मोमेंट, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत करनी है। अब जो रिसेंट क्वेश्चन है एग्जाम टाइम पर यदि सॉल्व करेंगे तो हमको याद रहेंगे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो जब हम दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जब हम ईयर वाइज प्रैक्टिस सॉल्यूशन करेंगे, तब हम 2023 को टच करेंगे, क्योंकि अभी हर टाइप से प्रैक्टिस करवाना, आपकी टॉपिक वाइज करा दी मैंने, यूनिट वाइज करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊं, तो वो रिसेंट में हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन में रिसेंट में भी रखूं, ईयर वाइज में भी रखूं, यूनिट वाइज में भी रखूं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये तो पहला इटरेशन था, ये आपका पहला इटरेशन था, ठीक है। नाउ वापस जाते हैं, आई क्या होगा, इंक्रीमेंट, आई विल बिकम 2, यहाँ लिखूं क्या, है ना, आई विल बिकम 2, आई विल यहाँ लिख देते हैं नीचे एक बार एक इटरेशन, सो आई विल बिकम 2 नाउ, आई विल बिकम 2 नाउ, ठीक है, आई इज 2 नाउ, सी इक्वल टू w, नहीं आई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, आई इज 1 नाउ, ठीक है, आई अब आपका क्या बनेगा, 1, आई इज 1, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगेन c इक्वल टू w1, w1 मतलब e किस में स्टोर किया, c में, w1 में आपको क्या स्टोर करने के लिए बोल रहे हैं, w x माइनस आई माइनस 1, सो वी हैव w x का वैल्यू है 5, I है 1 माइनस 1, so it will give you w माइनस 2, दैट इज w3, और w3 लोकेशन पर क्या है, l है, सो नाउ हियर यू हैव w1 इज l, w1 क्या हो गया, w1 बन गया l, एंड देन यू हैव w3, अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू c, c में क्या है e, सो e आ गया w3 में और l आ गया इसमें, ठीक है। ये आपके स्वैपिंग हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो नाउ वी हैव व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई नाउ, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी आपकी 2, है ना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सो ये आपका आई का वैल्यू है 2, आई का वैल्यू है 2, एंड आई इज लेस देन 5, कंडीशन है ट्रू। नाउ सी, सी इक्वल टू क्या लिख रहे हो, w2, w2 पर क्या है
L है, W2 पर L है। एंड WI मतलब W2 पर असाइन क्या करना है, W, X is 5 -2 -1, so when you will calculate you will get W2 और असाइन क्या कर दोगे अगेन, ये आपको मिलेगा W2 मतलब L, ठीक है। तो मतलब W2 दोनों स्पेस पर आपको L ही मिल रहा है। so finally when you are again assigning into the W2 you will get L। तो मतलब ये तो बीच का कैरेक्टर है, इट इज नॉट चेंज, तो ये आपका L ही रहेगा, L ही रहेगा, है ना। तो ये आपका एक, अब ये आपका हो गया रिवर्स, ठीक है। बट अभी हमारा लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका लूप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इट इज नॉट एंडेड। सो नाउ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ I3, ठीक है, I को ले लेते हैं 3। सो वेदर 3 इज लेस देन 5, यस, अगेन C इक्वल टू क्या करना है, W3, 3, फिर W3 पर क्या है, E है, W3 पर E है, so C will have E, then I क्या हो जाएगा 3, WI is 3। now क्या करना है, W, X है 5 -3 -1, it will give you W1, W1 में क्या कैरेक्टर है, L है, W1 में है L। सो W3 में आपने फिर से डाल दिया L, W3 में आपने वापस क्या डाल दिया L, एंड W, ठीक है, 1 में आपने वापस क्या डाल दिया E। सो ये वापस देखो फिर से रीअरेंज होने लगा, फिर से रीअरेंज होने लगा। सो वापस E कहाँ आ गया, W1 पर, और W3 पर क्या आ गया, L, ठीक है, E वापस अपने पोजीशन पर N। अगेन वी हैव द वैल्यू ऑफ I, एक बार और स्वैपिंग कर दो, ठीक है। सो यू विल हैव वैल्यू ऑफ I इज नाउ 4, वैल्यू ऑफ I इज 4, एंड जब आप इसको करके देखोगे, सो नाउ दीज टू टर्म्स आर गोइंग टू स्वैप, H आपका वापस यहाँ आ जाएगा और O विल बी देयर। सो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द कंटेंट ऑफ अरे इन द ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है, जो फाइनल आउटपुट बनेगा, द कंटेंट इन द ओरिजिनल ऑर्डर। इज इट क्लियर, ठीक है। ट्रेस करिएगा एक बार आप लोग फिर से, इट विल हेल्प यू टू लर्न द कॉन्सेप्ट। टुमारो वी विल स्टार्ट विद जुलाई 2018, ठीक है। अच्छा कल नहीं ले पाऊंगी क्लास, सो थर्सडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2018, एंड हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू, सेलिब्रेट करिए, वी विल कंटिन्यू आफ्टर राखी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बी देयर एट 6:30।